اس میں 1.5 ایکڑ کا ہم نے شاپنگ مال کی جگہ چھوڑی ہے. یہاں ہم میک ڈونلڈ کو لے کے آئے. بہت اچھے ٹائم پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور آج ہم اس انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی بائی 4-5 ٹائم ان لوگوں کا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. ہمارے پاس 20 سے 25 آؤٹ لیٹس جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے. اس ایریا کو منی دبئی ٹائپ بنانا چاہ رہا ہوں. ڈیجیٹل سینما بچوں کے لیے جو اینیمیٹڈ موویز ہوں گی نا. السلام علیکم ناظرین کرام, سلامت رہیں, آباد رہیں اور ترقی کی راہوں میں یوں ہی کام چل رہے. ناظرین کرام, اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کے لیے کمرشل پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویلاگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمارا وزٹ اوکاڑا بائی پاس کی بہترین لوکیشن پر ایک شاندار کمرشل ہب پر ہوا جس کا نام ہے پیراڈائز بزنس کمپلیکس, جو اوکاڑا بائی پاس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہی ہے, جہاں پر دبئی کی طرز پہ جدید سہولیات میسر ہوں گی. ایک ایسی جگہ جہاں پر مختلف برانڈز آنے کے لیے بےتاب ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اوکاڑا شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا. تو اپنے نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. تو کرتے ہیں ویلاگ کو شروع. السلام علیکم ناظرین کرام, آج ہم موجود ہیں پیراڈائز بزنس کمپلیکس پہ اور یہاں پہ بہت ہی جدید ترین سہولیات جو ہے نا آنے والے ٹائم پہ جن کا انہوں نے آغاز کیا ہے. یہاں پہ فائر فائٹنگ ہے, وسیع کار پارکنگ ہے, سوئمنگ پول تک ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول کی ایک ایسی کمرشل مارکیٹ بن رہی ہے جہاں پہ جتنے بھی ہی جدید سے جدید سہولیات ہیں وہ میسر ہیں اور بہت سارے آؤٹ لیٹس اور بہت سارے برانڈز جو ہے ان کی خواہش ہوگی کہ وہ یہاں پہ آ کے پلاٹس لیں اور یہاں پہ اپنا ایک آؤٹ لیٹ بنائیں. تو اسی چیز کو لے کے ہمارے ساتھ اونر موجود ہیں یہاں کے پیراڈائز بزنس کمپلیکس کے, تو ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ سر پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈفرینس ہے آپ کا اور دوسری جو کمرشل مارکیٹس ہے, پیراڈائز بزنس کمپلیکس کو آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیراڈائز بزنس کمپلیکس ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی ایک منفرد شاپنگ اپنا کمرشل مارکیٹ ہے جو کہ نیشنل ہائی وے کے اوپر ہے. یہ تقریباً اوکاڑا ڈسٹرکٹ کا ایک ہب ہے کاروباری. ہاں جی, یہاں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی نے اتنی پارکنگ نہیں دی جس طرح ہم نے ان فیوچر پارکنگ کو مد نظر رکھا ہے اور انڈر گراؤنڈ بجلی دی ہے ہم نے, کارپیٹ روڈ ہیں اس کے. اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اس میں 1.5 ایکڑ کا ہم نے شاپنگ مال کی جگہ چھوڑی ہے. شاپنگ مال ہاں جی, 1.5 ایکڑ کا شاپنگ مال ہے اس میں. انشاءاللہ تعالی ہم میک ڈونلڈ کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ہم میک ڈونلڈ کو لے کے آئیں. ہماری بات چیت ہو رہی ہے ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی یہ اوکاڑا کا ایک منفرد کمرشل پروجیکٹ ہے جہاں ہر طرح کے برانڈز, ہماری کوشش ہے کہ بھی ہم ان کو لے کے آئیں. اور 4-5 مرلے کی کٹنگ ہے ہماری ادھر. 80 فٹ مین روڈ ہے, بلیوار روڈ, اور باقی 40 فٹ روڈ ہیں. اس کے علاوہ پارکنگ ہے, فرنٹ پہ بھی ہم نے پارکنگ چھوڑی ہے. اچھا, بہت سارے دوست جو ہے نا کویسچن کرتے ہیں کہ یار ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ ایسا ادارہ ہے جو TMA سے منظور شدہ ہے یا بیسکلی لوگ پیسہ لگانے میں ڈرتے بھی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ, ہمارے جو پارٹنر ہیں اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے CEO صاحب آصف صاحب بیٹھے ہیں, شیخ حفیظ صاحب لاسانی گروپ والے, شیخ تنویر صاحب, یہ ہمارے. جی ناظرین, اس طرح یہاں پہ جتنے بھی اوکاڑا کے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ سب کا اپنا ایک جو ہے نا کمپلیکس بنایا گیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے اعتماد اور بھروسہ ہی سب سے بڑی چیز ہے. اور لاسانی گروپ والے بھی ہیں, کرم الہی فرٹیلائزر والے بھی ہیں, اس طرح سارے جتنے بھی اوکاڑا کی کریم ہے ان کریم نے مل کے یہ ایک کمپلیکس تیار کیا ہے. تو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو زبردست کوئی ایسا وہ نہیں لگتا. اچھا سر, روڈز کے بارے میں بتائیے گا, روڈز کتنے فٹ ہیں, کیا کیا؟ جی, مین ہمارا روڈ جو ہے اپنا 80 فٹ روڈ ہے اور جو برانچیں ہیں وہ 40 فٹ روڈ کی ہیں. انڈر گراؤنڈ ہماری بجلی ہے. ٹھیک ہے. تو
जहाँ अंडरग्राउंड बिजली होती है वहाँ अगर 40 फुट रोड है तो उसका मतलब है कि 60 फुट के करीब है रोड। जैसे कि आप जानते हैं कि उकाड़ा शहर के अंदर जो एक वीनस चौक हो गया, गोल्ड चौक हो गया, वहाँ पे बिज़नेस के हवाले से इतना ज़्यादा रश हो गया है कि अब जो है ना लोग वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल फ़ील होता है उनको, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के ताजर बरदरी ने यहाँ पे जो बिज़नेस पैराडाइज़ बिज़नेस कम्प्लेक्स का आगाज़ किया है, और यहाँ पे इतना ही ज़बरदस्त व्यू है और जो तरक्याती काम है, आई थिंक सो कि वो बिल्कुल तकमील के लास्ट मराहिल पर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस प्रोजेक्ट बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है जीटी रोड पे, ये पैराडाइज़ बिज़नेस कम्प्लेक्स जो है, ये लाहौर से लेके मुल्तान तक हमारी जो एंट्रेंस है वो हमने डिजिटल एंट्रेंस बनाई है। लाहौर से लेकर मुल्तान तक कोई भी इस तरह की एंट्रेंस नहीं बनी हुई। हमने फ्रंट पे जो हमारे एलसीडीज़ लगी हैं वो हमने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की एलसीडी उसके ऊपर लगाई हैं, सिर्फ उस अपने पैराडाइज़ बिज़नेस कम्प्लेक्स को उसको फेमस करने के लिए, उन लोगों को खूबसूरती के लिए, उसमें खूबसूरती का इजाफा करने के लिए, यहाँ पे आके महसूस हो और उन्हें अच्छा लगे। जी, मैं और फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ सेल रेट हमने रखा हुआ है, हमारा इस वक्त जो सेल रेट चल रहा है वो तकरीबन 22-23 लाख रुपए जो रेट चल रहा है 80 फुट रोड पे चल रहा है, और 17 लाख रुपए हमारा 40 फुट रोड पे सेल चल रहा है। हमारे रेट की इस वक्त ये पोजीशन ये है कि हमारा 1 साल गुजर गया और 2 साल बकाया है, लेकिन सराउंडिंग में हमारे एरिए में जितने भी मॉल्स बने हुए हैं, जितने भी हमारे करीब जो प्लाजे बने हुए हैं, वहाँ पे रोड्स और हमारे रोड्स का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सराउंडिंग में 15 से 20 फुट का रोड है, 25 फुट का रोड है, और हमारे 80 और 40 फुट का रोड है। और उसके अलावा जो हमने रेट रखा हुआ है, वो हम ये कहते हैं कि हमारा आज का ये रखा हुआ रेट जो अभी इंस्टॉलमेंट में है, आने वाले दिनों में लोग इंशाल्लाह ये कहा करेंगे कि बहुत अच्छे टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और आज हम उस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई बाई 4-5 टाइम उन लोगों का हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हमारा रेट है, ये इस वक्त हमारा रेट मौजूदा रेट के मुकाबले में 3 से 4 गुना कम है जो इस वक्त सराउंडिंग में रेट है, और हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। और फिर उसके अलावा असल जो है ना इस प्रोजेक्ट की अहमियत जो है वो ये है कि अभी पूरा शहर इतना महंगा हो गया और इतना कंजस्टेड हो गया है कि लोग घर से जब निकलते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं होता। शहर की गलियों में, बाज़ारों में जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पे गाड़ी बाहर पार्क करके उनको वो शॉपिंग करनी पड़ती है। ये जो हमारा कम्प्लेक्स है, यहाँ पे लोग, एक तो वो जो शहरदार और जो हमारा दीपालपुर, हुजरा, बसीरपुर, ये सारी सराउंडिंग में पट्टी है, वो सारे के सारे लोग, ये बिज़नेस का एक ऐसा बड़ा हब बनेगा जो पूरी सराउंडिंग में कहीं नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे आउटलेट्स और ऐसे कमर्शियल प्लाजे बनेंगे कि लोग मुस्तकबिल में इसकी मिसाल दिया करेंगे कि किसी वक्त में ये बहुत अच्छे और सस्ते रेट में अवेलेबल था, और आज तो इसको मतलब इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी वो आपको आउटलेट नहीं मिलेगी। एक वक्त आ जाना है इंशाल्लाह, 1-2-3 साल के अंदर अंदर इसने इतनी तरक्की कर जानी है। मौजूदा पोजीशन ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो आउटलेट शहर में चल रही हैं, वो सारी की सारी आउटलेट्स जो हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, उनके रेंट इतने महंगे हो गए हैं कि लोग उनकी तरफ, मतलब उनके लोगों की एक्सेस गाड़ियों पे उनके पास है नहीं। तो ये जो हमारा हब है, यहाँ पे लोग इस तवातर के साथ और इतना ज़्यादा इधर करेंगे इंशाल्लाह, सराउंडिंग से, पूरे साहिवाल से, पूरा ये रनाला, अख्तराबाद और ये दीपालपुर, ये सारे इलाके यहाँ पे रश करेंगे, क्योंकि हम जो 1.5 एकड़ का जो हमने मॉल छोड़ा हुआ है, उस 1.5 एकड़ के मॉल में हम बहुत सारे प्लान करके बैठे हुए हैं जो लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ इस एरिए में। जब वो कंप्लीट होती है ना इंशाल्लाह, और ये आउटलेट्स हमारे पास, ये आप देखें, आप इनको दिखाएं कि इस वक्त हमारे पास 20 से 25 आउटलेट्स जो है ना वो हमारे साथ कमिटमेंट हो चुकी है उनकी, वो जो आने के लिए ये सारी की सारी आउटलेट, ये टोटल आउटलेट्स जो है हमारी, उनकी हमारे साथ कमिटमेंट हो चुकी है। जो आने जितने भी ब्रांड्स के आपने लोगोस लगाए हुए हैं, ये सारे कमिटेड है जी, कमिटेड है और आने के लिए तैयार बैठे हैं। हम बिल्डिंग्स शुरू करने लगे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोई बंदा वैसे इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर हजरात के लिए, तो उसका तो आने वाला 2 साल के बाद एक बड़ा महल वो लॉटरी निकलने वाली है। जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सराउंडिंग में जो रेट है ना हमारे, इस वक्त सराउंडिंग में एक मरले का रेट 40 से 50 लाख रुपए है।
हमारे पास इस वक्त 4.5 मरले का प्लाट जो है ना 80-85 लाख में अवेलेबल है, 4.5 और 2 साल का टाइम अभी बकाया, 2 साल का टाइम अभी बकाया। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के लिए इस वक्त बड़ा बेनिफिशियल है। अगर जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में इसका मच मोर बिगर रिवार्ड जो है इसका हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान अकरम साहब से जो दुबई से एजुकेटेड हैं, मैनेजमेंट के हवाले से बहुत, इन्होंने अपनी टीम जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, और इनसे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं इमरान साहब से कि वो बताए कि इन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से, इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या इक़्तिदाम किए हैं। जी इमरान साहब बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कि कुछ मतलब ये जस्ट कमर्शियल हब नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रिप मॉल टाइप है, जैसा कि आप लंदन में या दुबई में देखते हैं जब शॉपिंग का बूम आता है तो एक स्ट्रिप मॉल टाइप। यानी आप सिंपल ये कह रहे हैं ओकाड़ा को पेरिस बनाने जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा समझ लें, क्योंकि वही विजन के साथ, वही प्लानिंग के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर विजिट करता है ना उसे डिफरेंट फीलिंग आती है। तो यानी जैसे एक आम जो एक बोला जाता है ना कि मिनी लाहौर ओकाड़ा को, तो मेरा ख्याल है आप वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, मिनी दुबई टाइप बनाना चाह रहा हूँ, जैसा कि हाँ, क्योंकि उस फोकस पे हम चल रहे हैं। और हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है ना, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो अंडर बाय लॉज हो रही हैं। यानी कि हमारे से पहले ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं, इधर चेकिंग होती है, उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होती है। कि नॉर्मल डेवलपर क्या करते हैं कि डेवलप की सोसाइटी एंड मूव ऑन, हमने यहाँ रहना है। हमारी मैनेजमेंट ओवरऑल पैराडाइज मैनेजमेंट के नाम से इधर ऑफिस होगा, जिसके अंदर सारे आउटलेट्स के जो साइनेज लगने हैं, उनके डोर फ्रंट लगने हैं, शटर्स लगने हैं, वो सारी चीज़ बाय लॉज होंगी। लाइक बहरिया कह लें, लाइक दुबई कह लें आप उसे। हाँ, ज़बरदस्त। जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कम्युनिटी के अंदर बाय लॉज होते हैं ना, मतलब आप इस स्टैंडर्ड्स पे ही रहना है, स्टैंडर्ड से ना नीचे जा सकते हैं। हाँ, ऊपर कोई सजेशन लेके आता है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जब एक बाय लॉज पे सब ने अपने शोरूम्स बनाने हैं, शॉप फ्रंट और हर चीज़ एज पर डिज़ाइन होनी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरे प्लॉट्स पड़े होंगे ना इन्वेस्टर्स के, जिन्होंने प्लॉट लेके छोड़ा होगा, वो उनके बूस्ट आएगा, उनके प्लॉट्स में रेट में बूस्ट आएगा। उसकी 2 रीज़न होती है। एक है विजन, जो डेवलपर का विजन है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो प्रोजेक्ट को देख रहा है, वो अपने विजन के मुताबिक चल रहा है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा तो वो बूस्ट लेके आ रहा है उनके इन्वेस्टमेंट के अंदर। और दूसरी जो चीज़ होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो अंडर लॉ में लेके आना सारे प्लाजा वालों को, सबको, जो ऑलरेडी हम उनको फ़ाइल देते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, और वो स्ट्रिक्टली हमने उनसे फॉलो करवानी है, और वो फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में उनके बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, उसके बाद सर्वे किया गया, ओकाड़ा की मार्केट को, ओकाड़ा के प्रेशर को, ओकाड़ा की सारी चीज़ों को देखा गया कि कितना मार्केट के अंदर प्रेशर है, कि न्यू आउटलेट्स की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जितने भी लोग इस बात से एग्री करेंगे, शॉपिंग के लिए सिर्फ हमारे पास एम ए जिनाह रोड है, उसके अलावा आप गाड़ी लेके किसी भी बाज़ार में किसी भी जगह पे नहीं जा सकते। और जो हमारे आउटलेट्स थे बाज़ार के अंदर, वो भी मूव होकर बाहर आ गए हैं ठंडी सड़क के ऊपर, और अब ठंडी सड़क की जो तसीर रोड है, वो वाला भी फील हो गया है। उसके बाद लोग मूव कर रहे हैं इस तरफ, और हमने जब सर्वे किया तो हमारे आसपास ना तकरीबन पीछे हमारे 150 एकड़ पे सोसाइटी है, लेफ्ट राइट साइड पे सोसाइटी है, फ्रंट पे सोसाइटी है। यानी आने वाला टाइम आप बड़ा यहाँ पे सुनहरा देख रहे हैं, पूरा एक रश और पूरा हजूम जो है ना। 5 ईयर इन्होंने शॉपिंग करने कहाँ जाना है, फिर फील वो आएगा कि मैं लाहौर क्यों जाऊँ, मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, मुझे दुबई की फीलिंग आ रही है। क्योंकि बैक साइड पे इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास डिजिटल सिनेमा है, बच्चों के लिए जो एनिमेटेड मूवीज होंगी ना, सिनेमा ओनली फॉर एनिमेटेड मूवीज, मतलब क्लियर कर दूं, उसमें कोई बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड नहीं चलेगी, उसमें सिर्फ बच्चों के लिए खास एंटरटेनमेंट, मतलब फैमिली आती है अपनी गाड़ी वहाँ पे रोक के, बच्चे जमा करवा के टोकन ले ले, बच्चे मूवीज देखते रहेंगे और फैमिली आराम से शॉपिंग करती रहेगी, जो मेन हर्डल थी ओकाड़ा सोसाइटी को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर प्लान लेके यहाँ प्रॉपरली कुछ ऐसा समझ लो, और बाकी आपको सारी चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। जबरदस्त। एंट्रेंस पे एलसीडीज लगी हुई है, जब चाहेंगे हम अपनी एंट्रेंस गेट का डिजाइन चेंज कर लेंगे। लाइक अगर 23 मार्च आया, 14 अगस्त आया, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जो कि दूसरी सोसाइटीज हैं, उन्होंने जो एंट्रेंस गेट बनाए होते हैं, वो चीज बनी हुई है, वो चल रही है, बोरिंग हो जाता है। और दूसरा, हम वहद मेरे डेवलपर्स, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो ट्रस्ट भी करते हैं, और सबसे मेन चीज़ इनकी मोहब्बत ओकाड़ा के साथ कि इन्होंने आई लव ओकाड़ा जी बिल्कुल, स्लोगन भी
किसी भी सोसाइटी ने नहीं किया। ये हमारा स्लोगन है, आई लव उकाड़ा। जी बिल्कुल नाजरीन कराम, जैसे बाहर आपने देखा होगा, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा व्यू, यहाँ पे लिखा हुआ आई लव उकाड़ा। तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत उकाड़ा के साथ और इतनी ज़्यादा चाहत उकाड़ा के साथ और इतने कम रेट्स में आपको इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी, ये वाकई एक मुहब्बे वतन और मुहब्बे उकाड़ा होने का एक अलामत है कि ये जो दोस्त है आपके लिए, सबके लिए जो कर रहे हैं। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको यहाँ पे आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि वाकई ये एक हकीकत है और वाकई में आपके लिए एक नया उकाड़ा बनने जा रहा है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।